बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलगाज़ी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर और अमीर हुसैन गाजी की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो इंसाफ का हसूल है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से पॉसिबल है, वो कौन कौन से इदारे हैं पाकिस्तान में जो हमें इंसाफ फराहम कर सकते हैं। अंडरस्टैंड जी। तो आज हमने उन तमाम इदारों को, उन तमाम चीज़ों को आपके लिए कंपाइल कर दिया है जहां से हम अपने इंसाफ का हसूल मुमकिन बना सकते हैं। अंडरस्टैंड जी। सो लेट वी सी आवर लेक्चर अबाउट जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सो जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को हम दो तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड जी। नंबर वन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कुछ हमारी कोर्ट्स का जिक्र है, कुछ हमारे ऑर्गन्स का जिक्र है जो कि हमारे इंसाफ से रिलेटेड हैं। अंडरस्टैंड जी। इसके अलावा हम अपना स्टैट्यूट्स देखेंगे, जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनमें देखेंगे कि वहाँ पर हमें कौन सी कोर्ट्स और कौन से डिपार्टमेंट्स मिलते हैं जहाँ से हम अपने इंसाफ के हसूल को मुमकिन बना सकें। अंडरस्टैंड जी। सो लेट्स सी द लेक्चर about judicial system of Pakistan. So judicial system of Pakistan has been divided into two main subsystems. Number one, the constitutional system, and number two is the statutory system. So the constitutional system has been divided into number one, courts, number two, tribunals, number three, commissions, and number four, councils. Understand me? So let we see the number one is the courts. So there are five different courts has been elaborated in the Constitution of Pakistan. So number one is the Supreme Court of Pakistan. It's the highest court of Pakistan. So number two is the High Courts for 4 provinces and one for Federal Capital Islamabad. And the number 3 is the Federal Shariat Court of Pakistan. Federal Shariat Court of Pakistan. So number 4 is the special courts that were composed or constructed under Article 212B of the Constitution. And the last one is the administrative courts. That this concept has been discussed under Article 212 of the Constitutions. So the number one system is the court system in Pakistan that we have elaborated. So in तमाम को जो है हम constitutional courts कहते हैं. Understand? So number two is the tribunals. So there are 2 tribunals that have been discussed in the Constitution of Pakistan. Number one is the administrative courts under Article 212, and number 2 is the election tribunals under Article 225. Understand? And the number 3 is the commissions. So there are 4 different commissions that have been discussed in Constitution of Pakistan. So number 1 is the National Finance Commission. Understand? National Finance Commission under Article 160 of the Constitution. And the number 2 is the Judicial Commission of Pakistan that is discussed in 175A of the Constitution. And the number 3 is the Election Commission of Pakistan under Article 218. And the last one is the Public Service Commission. So the Public Service Commission has been divided into Federal Public Service Commission, okay, and Provincial Public Service Commission. इसको हम कहते हैं दोनों को, ठीक है जी, FPSC and Provincial Public Service Commission.
PPSC. Okay, under Article 242. So there are so many councils that have been discussed in the Constitution of Pakistan. So there are 4 councils that have been discussed. So number 1 is the National Security Council under Article 152A, and the number 2 is the Council of Common Interest that has been discussed in 153. Number 3 is the National Commission of National Economic Council under Article 156, and 4th one is the Supreme Judicial Council under 209, and the last one is the Islamic Ideology Council under Article 228. Understand? So ये वो तमाम हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 4 मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैं जहाँ से हम अपने इंसाफ को, अपने जुडिशल सिस्टम को जो है वो आगे बेहतर बनाए हुए हैं। अंडरस्टैंड जी? इन्हीं 4 इदारों से हम अपने मुख्तलिफ तरह के जो इंटरेस्ट्स हैं, मुख्तलिफ तरह के जो हम फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। अंडरस्टैंड जी? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारे पास 4 जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स मौजूद हैं। एक बात जो बड़ी अहम है वो डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनोग्राम, सिर्फ और सिर्फ उसकी कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान में अदालतों की साख्त के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसका आपको कोई इलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट नहीं दे रहे। इलैबोरेटिव कॉन्सेप्ट हम अपने जो है वो अगले वीडियो लेक्चर्स में आप तक पहुंचाएंगे। इसको हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में तकसीम किया है। सो एक एक कोर्स जो है, जो एक एक ट्राइब्यूनल, कमीशन और काउंसिल्स हैं, इन सब का एक टोटल इलैबोरेटिव व्यू जो है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इन सब को हमने इन वेरी डिटेल जो है वो डिस्कस भी करना है और आप तक भी पहुंचाना है। तो हमारी जो आने वाली वीडियोस हैं उनको आपने ज़रूर देखना है ताकि आपको पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो सके। सो नंबर 2 इज द स्टैट्यूटरी सिस्टम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हम देखते हैं तो ये 4 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या ऑर्गन्स हमारे सामने आते हैं। अंडरस्टैंड? सो उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं, ठीक है, दैट वाज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान or the before Pakistan, number 1. So statutory system में जो है वो हमारे पास district judiciary आती है, that is the subordinate judiciary, subordinate to the Supreme Court of Pakistan and subordinate to the High Courts of Pakistan. So Supreme Court के जो मातहत अदालतें हैं उनमें हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट से आगे जो मातहत अदालतें हैं उसमें हमारे पास जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो आती है। Understand? So district judiciary that has been divided into upper and lower. So upper district judiciary and the lower district judiciary. Understand? So upper district judiciary और lower district judiciary, इसको हमने 10 मुख्तलिफ जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैट्यूट में उनमें डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग? सो ये हम आपको फर्स्ट टाइम बताने जा रहे हैं कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, जो जुडिशल सिस्टम है, जो लोअर और अपर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का सिस्टम है, इससे इलैबोरेटिव आपको कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिल सकती। अंडरस्टैंडिंग? सो हमने बड़ी एफर्ट के साथ, बड़ी मेहनत के साथ इस लेक्चर को आपके लिए कंपाइल किया है। सो हमारी जो अपर जुडिशरी है और जो हमारी लोअर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, इसको हमने नंबर 1 सिविल कोर्ट्स में डिवाइड किया है। अंडरस्टैंड? सिविल में हम अपर भी देखेंगे, सिविल में हम लोअर भी देखेंगे। इसके अलावा हमने नंबर 2 इसको क्रिमिनल कोर्ट्स में डिवाइड किया है। क्रिमिनल में हम अपर भी देखेंगे, क्रिमिनल में हम लोअर भी देखेंगे। इसके अलावा हमने अपर और लोअर को ट्राइब्यूनल्स में तकसीम किया है। इसके अलावा हमने अपर और लोअर को स्पेशल कोर्ट्स में तकसीम किया हुआ है। इसके अलावा अपर और लोअर में हम बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और इसके अलावा मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में जो कि मुख्तलिफ स्टैट्यूटरी लॉज या एक्ट्स के तहत काम कर रही हैं। अंडरस्टैंड? इसके अलावा हम कमीशंस का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं अपर और लोअर जुडिशरी में देखेंगे। इसके अलावा ओम्बड्समैन, ठीक है जी,
द कोर्ट्स ऑफ ओम्बड्समैन, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा काउंसल्स मुख्तलिफ देखेंगे जो कि जिसमें हमारे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है वो बैठते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनाइजेशन सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो हम अपनी किसी अपर और लोअर जुडिशरी के अंदर देखेंगे। अंडरस्टैंड दी? सो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी ये जो आपको स्ट्रक्चर हमने यहाँ तक आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है, इसमें याद रखना है कि हमने आपको एक एक चीज जो है वो इलेबोरेट करनी है आपके लिए। सो यहाँ तक इस लेक्चर का जो आपके तक पहुंचाने का जो मकसद था वो यही था कि आपको एक बर्ड आई व्यू में समझाया जा सके कि हमारे मुल्क के अंदर अदालतों की साख्त कैसी है, अदालतें कैसे कंस्ट्रक्ट की गई हैं हमारे मुल्क के अंदर। अंडरस्टैंडिंग? सो हमने जो अपना लेक्चर कंपाइल करना है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम सबसे पहले देखेंगे। इसके अलावा अपनी हाई कोर्ट्स को देखेंगे, फेडरल शरीयत कोर्ट्स को देखेंगे, स्पेशल को देखेंगे, ट्राइब्यूनल्स को देखेंगे, कमीशन को देखेंगे, काउंसिल्स को देखेंगे, और लास्ट वन जो है वो हमारी स्टैट्यूटरी सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, उसको देखेंगे। हमने जो अपने लेक्चर कंपाइल किए हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, सो उनमें पार्ट 1 जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे सुप्रीम कोर्ट का कॉन्सेप्ट। पार्ट 2 में हम आपको हाई कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट बताएंगे। अंडरस्टैंड जी? सो हाई कोर्ट्स कौन सी हैं? 4 हाई कोर्ट्स हैं हमारी, 4 सूबे हैं और एक इस्लामाबाद है, ये इसका कॉन्सेप्ट पहुंचाएंगे। अंडरस्टैंड जी? इसके अलावा हम इन 4 सूबों में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका कॉन्सेप्ट भी आप तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा हम जी जो है वो अपना गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का जो जुडिशल सिस्टम है वो भी आप तक गोशगुजार करेंगे। अंडरस्टैंड जी? सो सबसे पहले हम अपने जो अगला लेक्चर है, जो अगली हमने फर्स्ट कोर्ट जो है वो अपनी इलैबोरेट करनी है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम मुख्तलिफ जो हेडिंग्स हैं साख्त के हवाले से उनको हमने मुख्तलिफ हेडिंग्स में डिवाइड किया हुआ है। अंडरस्टैंड? सो सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, रिव्यू, रिवीजन and also an advisory court having the advisory jurisdiction under the Constitution of Pakistan. Understand? So number 1 is the main registry. So where is the Supreme Court situated in Pakistan? So Supreme Court of Pakistan जो है उसको हमने 2 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट में देखना है कि ये इसकी बिल्डिंग कहाँ पे है और इसकी जो शाखें हैं, इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ पे है। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो मेन रजिस्ट्री है, जो मेन ऑफिस है, जो मेन बिल्डिंग है वो इस्लामाबाद में है। अंडरस्टैंड जी? सो आर्टिकल 183 सब आर्टिकल 1 ये कहता है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज द मेन रजिस्ट्री इन इस्लामाबाद। अंडरस्टैंड? सो नंबर 2 इज द सो देयर आर डिफरेंट रजिस्ट्री ब्रांचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की अदर देन मेन कैंपस जो है उसका जो मेन रजिस्ट्री है, उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की मुल्क के अंदर जो 4 मुख्तलिफ ब्रांच रजिस्ट्रीज हैं। अंडरस्टैंड जी? इन चारों में जो हमारे 4 सूबे हैं, उन 4 सूबों के जो कैपिटल्स हैं उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो है वो ब्रांच रजिस्ट्रीज मौजूद हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुख्तलिफ औकात में बैठती है और मुकदमात को सुनती है। So the purpose of the branch registry is to provide the justice to the remote areas. So अब देखिए, अगर हमने इस लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाना है, वहां पे ट्रैवल करना है, या एक बंदे ने
कोयटा से इस्लामाबाद की तरफ जाना है या पेशावर या कराची की तरफ से जाना है, तो ये बहुत दूर का ये फासला है, अंडरस्टैंड। सो इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आइन में इसकी बहुत जो है वो 4 रजिस्ट्री बनाएगी सूबों के अंदर, ताकि सूबों के अंदर रह के भी हम सुप्रीम कोर्ट की जो है वो अदालतें कायम करके लोगों को इंसाफ प्रोवाइड कर सकें, अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब ये था कि रिमोट एरियाज में भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो ब्रांच जो है वो तश्कील दी जाए और इंसाफ लोगों तक पहुंचाया जाए, अंडरस्टैंड। सो ये वाला जो ब्रांच रजिस्ट्री का है ये भी आर्टिकल 183 सब आर्टिकल 2 के अंदर डिस्कस है। सो तीसरी जो बात हमने सुप्रीम कोर्ट की के बारे में पढ़नी है, इसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा, सो नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अंडरस्टैंड। सो आर्टिकल 176 जो है वो इस बारे में हमारी थोड़ी हेल्प करता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए। सो आर्टिकल 176 को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है the act of parliament, that is the number of judges shall be decided by the act of parliament. So अगर जब तक act of parliament बनता नहीं है उस वक्त तक जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो बताएगा नंबर ऑफ जजेस क्या है, और जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास हो जाएगा यानी मुल्क के अंदर कोई एक्ट या कोई लॉ आ जाएगा तो फिर उस एक्ट की ही मानी जाएगी, अंडरस्टैंड। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक्ट जो है हमारे पास द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997, इस एक्ट के तहत इस एक्ट में ये बात लिखी हुई है, सो देयर शैल बी द 16 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदर देन चीफ जस्टिस, अंडरस्टैंड। सो चीफ जस्टिस के अलावा 16 जजेस होंगे। सो अगर चीफ जस्टिस को भी इंक्लूड किया जाए तो 17 टोटल तादाद है। इस 17 टोटल तादाद को हमने नंबर 1 चीफ जस्टिस में तकसीम किया है, नंबर 2 जो है वो इसके 14 जजेस हैं, अंडरस्टैंड, जो हमारे क्रिमिनल, सिविल और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं उनको देख रहे हैं। इसके अलावा एड हॉक जजेस हैं शरीयत अपीलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे हदूद जो केसेस हैं, जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इस्लाम से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको देखते हैं। सो ये एड हॉक जजेस जो हैं वो 2 सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद हैं। सो 2 ये हैं, 14 ये 16 और एक 17 जजेस मौजूद हैं। तो ये लिखा कहाँ पे हुआ, ये है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997, अंडरस्टैंड। सो चौथी जो हमने अहम बात पढ़नी है वो है सुप्रीम कोर्ट, द ऑफिसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अंडरस्टैंड। सो द ऑफिसेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट that had been discussed under Article 208 of the Constitution of Pakistan. So the offices, number 1 the registrar office, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार का ऑफिस मौजूद है, जिसमें रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामलात को देखते हैं, अंडरस्टैंड। नंबर 2 जो मेजर ऑफिस है सुप्रीम के अंदर कोर्ट के अंदर, ये है लॉ ऑफिसर्स, अंडरस्टैंड। सो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा अटॉर्नी का ऑफिस है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं, अंडरस्टैंड। सो नंबर 2 पे ये ऑफिस वहां पे मौजूद है, ये प्रोसिक्यूशन ऑफिस है ऑफ द गवर्नमेंट। सो नंबर 3 इज द एडवोकेट्स ऑफिस, अंडरस्टैंड। सो एडवोकेट ऑफिस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, उसमें सीनियर एडवोकेट्स को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, सीनियर एडवोकेट्स, एडवोकेट जो न्यूली एनरोल्ड हैं और एडवोकेट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं हमारे पास 1980 के, उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है वेरी इलैबोरेटिव है। इसके बाद हमने देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे पास रेलेवेंट लॉ है वो क्या है, अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने वेरी जो इलैबोरेटिव पढ़नी है, बड़ी अच्छे तरीके से इसको जो हमने डिस्कस करना है वो ये हमारा मैटर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 175 से लेके 191 तक जो है, इसके अलावा 204 से लेके 208 तक हैं। इसके अलावा हमारे पास द सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 1980 के। इसके अलावा हम सीपीसी में भी इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे ऑर्डर 45 है सीपीसी का, उसके अलावा सेक्शन पोर्शन भी इसको डील करता है, इसके अलावा सीआरपीसी है।
सो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो जब हम देखते हैं अपील, रिव्यू, डिवीजन, बेल्स, इनहेरेंट पावर, ये वो, तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है। अंडरस्टैंडिंग। सो दूसरी जो बड़ी अहम बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वो है सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अंडरस्टैंडिंग। ये जो बेंच है, ये जैसे हमने ये कहा कि 2 एडहॉक जजेस होते हैं, ये वाला जो बेंच है हमारा, ये 2 एडहॉक जजेस पे मुश्तमिल होता है जो कि इस्लाम के बारे में अपना सफिशिएंट नॉलेज रखते हैं। अंडरस्टैंडिंग। सो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक शरीयत एपलेट बेंच भी है। इस शरीयत एपलेट बेंच के जो मतहत है वो है फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टैंडिंग। सो फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जैसे नाम से भी जाहिर है कि शरीयत के मामलात को देखा जाता है। इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो हमने आर्टिकल 203A से लेके 203J तक देखना है, 208 में भी देखना है। इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट रूल्स हैं हमारे 1981, ये तमाम चीजों को भी हमने वेरी इलैबोरेटिव डिस्कस करना है। सो इस फेडरल शरीयत कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो है कोर्ट्स एंटरटेनिंग ऑफेंस रिगार्डिंग हदूद लॉज। सो जो हदूद के ऑफेंसेस हैं पाकिस्तान में, जैसे जिना है, कज़फ है, थेफ्ट है, ड्रिंकिंग है, वगैरह वगैरह, सो इसके लिए भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में पढ़ना है वेरी इलैबोरेटिव कि हमने वहाँ पे अपने जो सेशन कोर्ट है वो तमाम जो ऑफेंसेस हैं हदूद के उनको देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग। सो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि फेडरल शरीयत एपलेट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके जो सबऑर्डिनेट है फेडरल शरीयत कोर्ट, उसके सबऑर्डिनेट है हमारी जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और या सेशन कोर्ट्स। अंडरस्टैंड। या सेशन जज भी हैं, इन मामलों को देखते हैं। अंडरस्टैंड। सो दैट इज द व्यू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अंडरस्टैंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आपको पाकिस्तान का एक अदालती निज़ाम और सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक जो झलक है वो दिखाई है। अंडरस्टैंड जी। अभी हमने आपको इसका बहुत इलैबोरेटिव अंदाज में आपको इसको समझाना है। अंडरस्टैंड जी। सो अगला जो हमारा लेक्चर होगा, अगला हमारी जो वीडियो होगी वो हम हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान देखेंगे। अंडरस्टैंड जी। सो थैंक यू सो मच। हमारा चैनल भी जो है वो डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। अंडरस्टैंडिंग। आपके इस एक्ट की वजह से हमारी जो है वो हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह हम आपको पाकिस्तान के अंदर जो है जिस तरह की इंडिया के जो हमारे जो कह लें कि उस्ताद हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ला जो है वो अपलोड किया हुआ है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी इस चीज़ को जो है वो अच्छे अंदाज में अपने स्टूडेंट्स को समझाया जाए। तो जो हमारा अगला लेक्चर है वो है हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच।